Jai Hind and a very good morning to each and every one of you. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Today, I welcome everybody in the class of Social Science, and all the students of Standard Ninth are very much worried about their SA1 exams. Yes or no? I think it's right because students, the time which we are facing right now is having very much of surprises, and the surprises is one more added to this one. It's your summative assessment one or SA1 exam, which is going to be held in this month. In this month means in the month of October. ठीक है, fourth week of October it may be scheduled out, and in that particular course I hope everybody has registered their mobile number and their ID from Pocket Study. So you are getting our videos on time, and the syllabus is also updated on Pocket Study. ठीक है, although if you have not got, then you can write it down over here. Right, it is chapter number 3, 8, and this 17 chapter is also included in this, and chapter number 18. ठीक है, so total the number of chapters which we have included over here, it's total number of 5 chapters. ठीक है, paper style and all you can get to the Pocket Study application. Right students, so this is a new chapter which we are going to initiate today. This is chapter number 17, natural vegetation. ठीक है, the chapter belongs from geography, so might be it may be the conceptual chapter, but I want your attention on this because this is a easy chapter, and at the same time it is a very worthful too. Okay, so without wasting much time, let's get started. Chapter number 17, natural vegetation. So students, as you can see in the first paragraph, ठीक है, the first paragraph, if you'll see that vegetation is an important part of human life. Yes or no? I hope you all are agree with this कि nowadays whatever we are eating or whatever the things we used to consume, ठीक है, all the things generally belongs to the comfort of human life only. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द लाइफ विदाउट द वेजिटेशन. ठीक है, यहाँ वेजिटेशन जो वर्ड आ गया है, ठीक है, सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. वनस्पति, वनस्पति मीन्स वेजिटेशन मीन्स कि वॉट एवर वी फाउंड कंज्यूमेबल आइटम इन फॉरेस्ट एंड वी कैन कंज्यूम इट फॉर आवर फूड टू मेक आवर लाइफ मोर वर्दी. यस, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम नेचर से जुड़ी हुई उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं जो चीज़ें कंज्यूम करने लायक होती हैं. ठीक है, ताकि हम हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बाय द मॉडर्न साइंस. ठीक है, सो अगर हम पुरातात्विक ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान, इन दोनों की चीज़ों की बात करें, एंशिएंट स्कल्पचर से लेकर मॉडर्न साइंस तक, इन सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वेजिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. राइट, वनस्पति बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए. ठीक है, अगर जीवन में हमें ये नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती, पेड़ पौधे पक्षी ज़मीन, ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या होता, हमारे जीवन में और ज़्यादा कठिनाइयाँ आ सकती थी. वी कैन ऑल्सो फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑल्दो. सो इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज डाइवर्सिफाइड कंट्री. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में लिखनी हुई है. इंडिया इज़ अ लार्ज डाइवर्सिफाइड कंट्री इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन. ओके, सो अगर हम सिर्फ वेजिटेशन की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन देखने को मिलता है. पूरे वर्ल्ड में हम 10th पोजीशन होल्ड करते हैं और एशिया में 4th. ठीक है, सो प्लीज़ कीप इट अंडरलाइन दैट वी होल्ड 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड वी होल्ड 4th पोजीशन इन एशिया. राइट, यानी एशिया में हमारा 4था स्थान है और पूरे विश्व में हम 10वें स्थान पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन. ओके, तो MCQ पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट, एक सिंपल फॉरेस्ट की डेफिनेशन, ठीक है, अगर आपको याद रखनी है और आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट, उसको अब स्पेल कैसे करें
तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही आपको डेफिनेशन याद रखनी है for the lifetime, because a forest is nothing just a group of trees. Okay, it is a group of trees, those trees which grow natural condition without the human help. राइट यानी एक समूह, वृक्षों का समूह जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए बिना किसी मानवीय प्रभाव के, ठीक है, यानी विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन साइड. इफ एनी tree or a plant can grow and in a group it can grow, then it is called as a forest. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो प्लीज़ बच्चों से याद रखना. राइट, सो लेट्स मूव ऑन. व्हाट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वी आर हैविंग इन अवर इंडिया. राइट, सो एज यू कैन सी generally it is 6 types were given to you. The number 1 is relief feature, ठीक है, then second is soil, third is temperature, fourth is insolation or sunshine, fifth is rainfall and sixth is humidity. As you all know the friends ki some of the names you have also heard in the previous classes or the smaller standards, but now as you are in 9th standard, what new things you are going to know. Let's begin with the paragraph over here, that due to diversified relief in mountains, plateau, plains and desert. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है. ठीक है, लोकेशन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हमने देखा था इंडिया का लास्ट चैप्टर नंबर 13, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में. तो माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, डेजर्ट इंडिया में सब कुछ हैं और इतने पैटर्न में हमें अलग अलग वेजिटेशंस देखने को मिलता है. ठीक है, यानी माउंटेन है वहाँ पे अलग तरीके का माहौल होता है, वहाँ पे अलग तरीके की वनस्पति या वेजिटेशन देखने को मिलेगा. और प्लेटूज़ हैं, वहाँ की सॉइल अलग है. ठीक है, वहाँ पर जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो अलग होगा. प्लेन्स हैं यानी मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के. ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये जो झारखंड वाला एरिया है, दैट स्लॉट अगर कंसिडर करें तो वहाँ पर हमें फर्टिलाइज सॉइल मिलती है. तो प्लेन्स बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पर. ठीक है, उससे हमें काफ़ी अच्छा वेजिटेशन मिल जाता है. वहीं डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि हमें डेज़र्ट में कुछ नहीं मिलता या फिर कोई वेजिटेशन हमें डेज़र्ट में नहीं मिलता है. बहुत दुर्लभ चीज़ें हमें डेज़र्ट वेजिटेशंस में भी मिल जाती हैं. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ जो डेज़र्ट में हमें काम आती है और जो हमें मिलती है. इसका एक और रीज़न ये भी है कि हमारे इंडिया में हमारे पास जो सॉइल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट वैरायटी में है. वेदर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल, ब्लैक माउंटेन, डेजर्ट, ठीक है, एक्सेट्रा. एंड दिस ऑल सॉइल आर कंसिडरिंग एज एन वेरिएशन. इट क्रिएट्स अ वेरिएशन इन द वेजिटेशन, क्योंकि सिंपल है, वेजिटेशन जो है वो सॉइल से कनेक्टेड है. अगर आपका सॉइल ही अलग अलग है तो वेजिटेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा काफ़ी डिफरेंट और वैरायटी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है. वहीं अगर हम कोल्ड हिमालयस की बात करें, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को नहीं मिलती क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है. ठीक है, हवाओं में जो है नमी होती है. वहीं अगर आप साउदर्न पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो अलग है. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि, और ये जो वाटर वेपर की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है साउथ के एरिया में, नॉर्थ में इतनी ज़्यादा नहीं होती है. इंसोलेशन बच्चों मतलब क्या हुआ, सनशाइन. देखो, सनशाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अगर हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? आई थिंक एवरीबडी नोज दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स थ्रू विच प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. ठीक है, यानी अपना खाना वो खुद बना लेते हैं, किचन में नहीं. ठीक है, अपने अंदर ही, अपनी बॉडी के अंदर ही प्लांट की, उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पार्ट होता है वो सनशाइन प्ले करती है. ठीक है, तो एक पेड़ को उगने के लिए, पैदा होने के लिए, बड़ा होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसोलेशन की, दैट इज़ सनशाइन. सो सनशाइन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन. इट्स डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, लैटिट्यूड इज़ वर्टिकल लाइन, ऑल्टीट्यूड इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. जनरली आप देखते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है लोकेशन, साइज और स्ट्रक्चर में कि कैसे आप जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो भी सनशाइन की काफ़ी डिफ़र करते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. ठीक है, वहाँ पर जो सनशाइन है वो काफ़ी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पाती जितनी चाहिए. और वहीं टॉरिड जोन जो है वो काफ़ी हॉटेस्ट जोन होता है. ठीक है, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. आई होप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो प्लीज़ आगे देखते हैं. वेजिटेशन ग्रोज द फास्टर व्हेन द रेन इज़ मोर एंड इंसोलेशन इज़ मोर. सिंपल सी बात है
कि अगर हम चाय में शक्कर ज़्यादा डालेंगे तो चाय ज़्यादा मीठी हो जाएगी। उसी तरह अगर वेजिटेशन को ज़्यादा रेन और ज़्यादा सनशाइन यानी इंसोलेशन मिलेगी तो इट्स ऑटोमेटिकली ग्लो मोर फ्लावरिश। ठीक है, बहुत अच्छा वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी और इंसोलेशन यानी सनशाइन उसे देते हैं। सो दस द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया स्पेशली, चाहे वो सनशाइन हो, रेनफॉल हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, इंडिया इज़ ऑल्सो अनईक्वल विच टर्न्स अ कॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई इंडियाज़ कल्चर, वाई इंडियाज़ वेजिटेशन, वाई इंडियाज़ एवरीथिंग इज़ डाइवर्सिफाइड, तो you can say one thing just only because we Indians are the combinations, right? Combination means हम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं शायद पार्डन, शायद इसी वजह से हम जो हमारी जो पहचान है वो उस पूरी दुनिया में शायद सबसे अलग ही होती है। yes or no? So generally India is having a very diversified structure of vegetation. ओके, समझ में आ गया सब लोगों को। आगे देखते चलते हैं। यहाँ से चीज़ें हमको न्यूमेरिकल वे में याद रखनी है। कैसे, आइए देखते हैं कि इंडिया में खासकर हम बात करें तो 5000 से ज़्यादा ट्रीज़ की वैरायटी है, जिसमें से 450 कमर्शियली यूज़ होते हैं। कमर्शियली मीन्स बाइंग और सेलिंग के लिए, यानी बेचे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी 5000 वैरायटीज़ और 450 से ज़्यादा कमर्शियल यूज़ जैसे पेड़ इंडिया में होने के बावजूद हमारे पास 15,000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 6% है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 6% ऑफ वर्ल्ड इन द फॉर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ जनरली लोकेटेड इन इंडिया ओनली। और इसके अलावा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लाइक एल्गे, मॉसेस, फेन, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं बच्चों। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे देश में देखने को मिल जाते हैं। इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन अवर कंट्री। इंडिया इज़ अ फेमस सिंस एंशिएंट टाइम फॉर हर्बल प्लांट्स। ठीक है, आप देखते ही होंगे कि जो जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद है, उसमें करीबन 2000 से ज़्यादा मेडिकल प्लांट के बारे में ज़िक्र है जो चिकित्सा में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस मेडिसिनल प्लांट्स जनरली कॉल्ड अ जड़ी बूटी इन आवर लैंग्वेज। ठीक है, दस इट कैन बी सेड एज इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है, भारत जो देश है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ना सिर्फ अपने कल्चर में, भाषा में, रूप रंग में, बल्कि वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति यानी वेजिटेशन में भी। ठीक है बच्चों, तो ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता चल गया है कि वेजिटेशन क्या है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि कितने प्रकार के वेजिटेशन इंडिया में मिलते हैं और ये कैसे होते हैं और एक दूसरे में कैसे ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ठीक है, डिफ़र करने का मतलब क्या है कि आपस में दिस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हम जनरली अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम इसको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले तो। लेकिन उसमें भी हम कैसे करेंगे, उसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी ग्रोथ कैसे डेवलप होगा, वो उसके क्लाइमेट और उसके रीजन पर डेवलप करता है, डिपेंड करता है, सॉरी, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का रीजन कैसा है। ठीक है, यानी जैसा रीजन होगा, हॉट है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पर हमें वेजिटेशन देखने को मिलता है। इन शॉर्ट वो उसका ही आइडेंटिकल होता है, मतलब जैसा क्लाइमेट, जैसा रीजन, वैसा ही वहाँ का वेजिटेशन, राइट। तो कहीं कहीं जहाँ पर हमें इकोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं उन जगहों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। ऐसे कितने रीजन्स बनाए, ऐसे हमने 5 रीजन्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या। नंबर 1 एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ, हाइट। ठीक है, द टोटल हाइट। ठीक है, सॉइल, यानी वहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी मिलने वाली है। ठीक है, वो कैसी, क्या फेरिक एसिड वाली होगी या फिर ब्लैक होगी या आयरन ऑक्साइड वाली होगी, रेड सॉइल होगी, एलुवियल होगी, लैटराइट होगी, कौन सी सॉइल होगी, तो वो भी डिपेंड करता है। रेनफॉल कितना क्या होता है वहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा वहाँ की वनस्पति यानी वेजिटेशन पर। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द वेजिटेशन। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस कि ये सारी चीज़ों से अफेक्ट होकर जो वेजिटेशन है वो कितने तरीके से बढ़ जाता है, तो वो है 5। ठीक है, जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नंबर 2 इज़ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट,
ठीक है, याद रखिएगा deciduous, DECIDUOUS, deciduous। देन आता है tropical desert vegetation, then temperate forest and grasslands, and the last one is mangrove and tidal forest. So these are the major 5 forests which we have divided on the basis of altitude, soils, rainfall and differential temperature। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो कि क्या होता है और कैसे ये एक दूसरे से डिफ़र है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो जनरली हॉट और ह्यूमिड एरिया में मिलता है। ओके, हॉट और ह्यूमिड समझ जाना है कि द टेम्परेचर इज़ वेरी मच हाई, और यहाँ पर जो है वो जो रेनफॉल है दैट्स नॉट एक्सीड मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो करीब करीब 200 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो तापमान होता है वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी ये भी काफ़ी गर्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक मॉडरेट गर्म हम इसे मान सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे फॉरेस्ट होते हैं उसमें हैवी रेन्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड जैसी जगहों पर आते हैं। ठीक है, और असम कोस्टल प्लेन्स, तमिलनाडु जैसी जगहें ये, तो यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द सी, और वे आर वेरी क्लोज टू द वेरी so trees are generally found, what types of trees are generally found over here? As you can see, the trees are found like mahogany, ebony, rosewood and rubber। ठीक है, सो इसमें से एटलीस्ट आप 2 से 3 याद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं कि 60 मीटर के पेड़ होते हैं, यानी काफ़ी ऊंचे। ठीक है, और इससे भी ऊंचे वहाँ पर ट्रीज़ हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर ह्यूमिडिटी है, यानी जो पानी में वाटर वेपर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ड्यू टू स्कर्ब्स। ठीक है, स्कर्ब्स मीन्स क्या हुआ, जनरली आप लोग देखते होंगे कि पानी जो होगा अगर वाटर बहुत पास में है उसके लैंड के, तो वेपर्स ज़्यादा बनेगी, और वेपर्स ज़्यादा बनेगी तो ह्यूमिडिटी की वजह से उसकी जो हवा है उसमें उमस वाली गर्मी होगी, जिसमें पसीना भी आपको आता है। देयर इज़ नो सीज़न लाइक ऑटम ओवर हियर। ठीक है, तो किसी भी तरीके की जो लीव शेडिंग होती है, ऑटम सीज़न जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है, और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन रहते हैं मीन्स हमेशा ही हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि रेनफॉल की वजह से। इस वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Okay, so after tropical rain forest, as you can see on the screen that this is the map of India, right? In this map you can the table was given to you that all the five vegetations were given to you. We are studying about tropical evergreen forest, right, which is a light green in color। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, लाइट ग्रीन इन कलर। और ये जो लाइट ग्रीन इन कलर है वो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? सबसे पहले साउथ में अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, हमारा जो साउदर्न वेस्ट साइड का है, साउथ वेस्ट साइड का, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा साउथ ईस्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर हमें ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन यहाँ भी है। इसके अलावा जो बड़ा पार्ट है वो हमें 7 सिस्टर्स में देखने को मिलता है यहाँ पर नीचे, और इसके अलावा थोड़ा सा हमें वेस्ट बंगाल और ऊपर और नीचे तक हमें यहाँ पर एवरग्रीन देखने को मिल जाता है। एवरग्रीन ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 3-4 जगहें हैं बच्चों, आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं अपन दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये थोड़ा लाइट ग्रीन है। ये आप देख सकते हो कि नीचे साउथ में और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई सा फॉरेस्ट है तो वो यही फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो पूरा सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पूरा देखो पूरा ग्रीन है, विच मीन्स दैट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी माउंटेन्स एरिया पे, हिमालयस पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है हमको, राइट। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है हम लोगों को यानी ब्राउन, वो सिर्फ हमें कुछ कुछ जगहों पर, खासकर तटीय इलाकों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी जो सी कोस्ट एरिया है वहाँ पर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लास्ट थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट है वो एकदम लाइट है, वो आपको ये बीच में सेंटर में आप देख पा रहे हो, यहाँ है थोड़ा सा, और ये जो है राजस्थान वाला जो इलाका है, उसके अलावा गुजरात का जो है, यहाँ पे हमें थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैप आपको नोटबुक में बनाना है, कोशिश करिएगा बना लें सभी लोग, राइट। चलिए अब देख लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू कर रहे हैं।
ये ज़्यादातर जो है वो 70 से 20 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है, जैसा कि अभी हमने देखा हिमालय फुट हिल्स पे भी है। स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से। ये ईस्टर्न घाट, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस, 3 बड़ी बड़ी भारत की रेंजेस, माउंटेन रेंजेस यहाँ पर आती हैं विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है, पेड़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, खेर, असासिया जिसे खींचू का पेड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा बैम्बू। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। ठीक है, किसके? अपार्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो इसमें ट्रीज़ होते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ जो ट्री होते हैं, उनमें एक ही चीज़ कॉमन दिखी जाती है कि दे शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक ड्यूरिंग ऑटम। यानी ऑटम आता है जब 6 से 8 हफ्ते के लिए वो अपनी जो लीव होती है वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, सूख जाती है उनकी पत्तियाँ। एवरी स्पीसीज आर डिफरेंट शेड देयर लीव, यानी अपनी अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, जैसा पेड़ होगा वैसी प्रजाति होगी, वैसा ही वहाँ पर आपको देखने को मिले। यस, इसके अलावा सो ऑल द ट्रीज़ आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन। यानी देखा जाए तो कुछ पेड़ हैं जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर समय कुछ ना कोई पेड़ अपनी 6 से 8 हफ्तों के दरमियान अपनी लीव्स को शेड ज़रूर करता है। सो एज दिस रीज़न हमें यहाँ की जो सीज़ है, द लीव्स अकॉर्डिंग टू दिस सीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, तो डेसिडियस का एक दूसरा नाम आ गया मानसून फॉरेस्ट। याद रखिएगा कि जैसे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने नाम दिया है उसको। ठीक है, आपको याद ही होगा, हमने देखा ऊपर, ये डेसिडियस है। इसके अलावा इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, डेजर्ट वेजिटेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रेनफॉल तो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी 70 सेंटीमीटर, उससे भी कम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट देखा जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें ट्रीज़ की तो डेट्स, जुजुबा, असासिया, खेचू, खिजड़ो और अन्य तरीके के आपको ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेजर्ट वेजिटेशन के बाद ग्रासलैंड्स की बात कर लेते हैं हम लोग, टेम्परेट फॉरेस्ट में जो आते हैं। इन ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो इस ग्रासलैंड्स में भी हमने ट्रीज़ के अनुसार उन लोगों को डिवाइड किया हुआ है। ट्रीज़ के अनुसार मीन्स कि ट्रीज़ की हाइट कितनी है, अगर वो 1000 से 2000 है, 1500 से 3000 या 3000 से ऊपर है, ये 3 कैटेगरी हमने निकाल दी। इसमें सिंपल है कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर उत्तराखंड वाला एरिया है, जहाँ पे 1000 और 2000 के हाइट के ट्रीज़ मिलते हैं। 1500 से 2000 यानी उससे ऊंचे हमें साउदर्न स्लोप में देखने को मिलेंगे, थोड़े नीचे आ जाएंगे हम लोग इंडिया में। ठीक है, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में खासकर हमें 1500 से 2000 देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ जो हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स के 3600 मीटर ऊंचे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें हिमालयाज़ पे देखने को मिलते हैं, जो कि स्नो लाइन के पास में है। फॉरेस्ट कौन से होते हैं? 1000 से 2000 वाले ट्रीज़ के अंदर स्पेशली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 1500 से 2000 वाले कॉनिफोरस मतलब क्या है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। ठीक है, कॉनिकल शेप, मैथ्स में पढ़ा हुआ है हमने। 3600 यानी सबसे ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे अल्पाइन्स एंड शॉर्ट ग्रास। ठीक है, अल्पाइन इज़ अ टाइप ऑफ ट्री एंड शॉर्ट ग्रास मीन्स नॉर्मली टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है। अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो 1000 से 2000 जो ट्रीज़ मिलते हैं हाइट के, उसमें ओक और कैश्यू नट, ठीक है, चेस्टनट सॉरी। इसके अलावा 1500 से 3000 तक पाइन, साल, सिल्वर और फीर स्पर्स, ये ट्रीज़ के नाम हैं। इसके अलावा 3600 यानी सबसे ऊंचे पेड़ों में हमें सिल्वर फेयर और ब्रीच नाम के ट्रीज़ मिल जाते हैं। तो बच्चों ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीज़न क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स के बारे में। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। तो 2 चीज़ें आज आपको करनी है। नंबर 1 दैट द मैप यू हैव टू स्टिक इट ऑन, ठीक है, एंड सेकेंडली दिस टेबल. So this now the last but not the least, 5th one, ठीक है, the tidal forest, the last topic of today's lecture. Tidal forests or called mangrove forest are the generally located as the delta region, ठीक है, rivers alongside इसके होती है और ये फॉरेस्ट गुजरात में देखने को मिलता है, खासकर मार्शी लैंड्स में। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल कोस्ट और सुंदरी और खेर नाम की ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच वी हैव स्टडीड टुडे: टाइडल फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये 2 पेजेस अच्छे से आप पढ़ लेंगे। अप टू हियर वी हैव फिनिश्ड इट ऑफ। ये मैप बना लेना और ये टेबल बना लेना।
ठीक है, नहीं बना पा रहे हो तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो अपनी प्रॉब्लम एंड विल गेट बैक टू यू सून, राइट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, थैंक यू सो मच।